Hello students, myself Dr. Preeti Sharma from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shekohabad. Students, we have started reading the chapter 2 of your book Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together, written by Jordan Cook and Alan East. Jordan Cook, one of the authors of this lesson, is the narrator of the chapter. Wherever the word I or captain is used in the chapter, it is used for the captain Jordan Cook. He is describing his one of the most we can say important voyage of his life, which he made along with his wife, his son and his daughter. And in this voyage he faced a lots of hardships and struggles. There were times then their life was at the total risk. They were at the risk of losing their life, but the author and his family was brave enough not to leave the hope of survival, even the roughest situation of the journey. So, the author is describing the adventurous journey and what were the hardships he faced during his journey. In this chapter, we have read a lot of about this, how their ship was totally smashed by the harsh, gigantic, rough, and savage waves of the ocean which attacked their ship. They were not prepared for it. They were just sailing with a small storm jib. But even then, just because of their hope, their courage, they faced all the situation. Let's go ahead and read what happened next when the author found that not only his anchor, his storm zip, his debris, many of the important electronic items of the ships, and some of the important parts of the ships also, like starboard side, stern, they have been totally damaged by this storm. And what happened next? Let's read it. Now we shall begin the chapter from here. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. That night, they spent the author and his family and two of the boatmen, just in the endless efforts of bitterly cold night. And throughout the night they were pumping out the flooded water of the ship outside the ship. They were steering, they were controlling the wheel, or they were driving the ship in the safest path and working the radio. And all together with these things, they were continuously working on the radio. They were trying to connect the outsider people. They were trying to send their help messages to the other people, so that someone can listen them, that they are in the remote corner of the world in utterly disappointing condition and they need help. So उनकी पूरी जो रात थी वो इस ठंडे मौसम में इन्हीं कामों में गुजरी. वो पानी को पंपों के थ्रू बाहर फेंक रहे थे. दे वर स्टीयरिंग, दे वर ड्राइविंग द व्हील, और वो रेडियो पर लगातार अपनी मदद के लिए पुकार लगा रहे थे, मैसेजेस सेंड कर रहे थे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मिड डे कॉल्स. लेकिन वो बहुत डिसअपॉइंट थे, क्योंकि वो जो कॉल्स कर रहे थे, जो अपनी मिड डे कॉल, जो हेल्पिंग की कॉल्स कर रहे थे, उनका उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था. क्योंकि which was not surprising in this remote corner of the world. Remote corner means a distant corner of the world. We can say abandoned area, a very far away, very distant area of the world. And because the author is saying he was not getting any replies of his calls for help, because they were
located at a very distant, at a very remote corner of the world, where it is really hard to send the messages through radio. ठीक है, उनके पास जो कह सकते हैं हम कि सैटेलाइट्स वगैरह की सुविधाएं जो थी, जो मैसेजेस सेंड करने के लिए उनको नेटवर्क चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था. सो दे वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ देयर हेल्पिंग कॉल्स. Sue's had swollen alarmingly. पहले भी हमने पढ़ा था, जो Sue थी उसकी डॉटर जो 7-year-old है, he got an injury over her head, and when the author noticed her injury, he found that her head had swelling alarmingly. It was threatening, it was worrying to look such a swollen on the head of her daughter. She had two enormous black eyes. Because of the swelling, her eyes has turned into black, means there were dark black circle around her eyes because of that injury. And now she showed us a deep cut on her arm, and besides the injury of the head, there was a deep injury of cutting at the arm of the girl. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, when the author asked his daughter why he did not tell about all these injuries earlier to him, जब ऑथर ने कैप्टन जेम्स जॉर्डन कुक ने अपनी बेटी से पूछा कि उसने पहले इन चोट के बारे में क्यों नहीं बताया. पहले तो उसने सिर्फ इतना ही बताया कि थोड़ा सा सर पे चोट है, ये हैंड की इंजरी, और द इंजरी ऑफ हर हैड हैज ग्रोन सो सीवर. तो ये सब बातें उसने पहले क्यों नहीं बताई. शी रिप्लाइड, तो उसकी डॉटर ने रिप्लाई दिया. देखिए बहुत अच्छी लाइन है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं. आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल. She replied simply that father, as you was busy in great attempt of saving us all life, so I decided not to make you worry for this little injury of mine only, because you was busy for saving us all. So this statement shows the courage, the power, the bravery, the intellectual strength of this little girl who is just 7-year-old. उसे पता है कि अपने फादर को किस समय क्या बात बतानी है, क्या नहीं बतानी है. वो नहीं चाहती थी अपनी इंजरी के बारे में बता के अपने फादर को और वरीड करे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में थे. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3. ठीक है, अब ऑथर जो है बात कर रहा है जनवरी 3 की मॉर्निंग की. ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था बेटा पूरी जो स्टोरी है वो डेट्स में डिवाइड है. ठीक है, अब जनवरी 3, इससे पहले 2 जन की उसने सारी बात बता दी. 2 जन में ये सारा हादसा उन लोगों के साथ हुआ. 2 जन की शाम को 6 बजे उसने बताया कि जो तूफान था वो आया, किस तरह उनकी बोट जो थी वो पूरी तरह टूट गई. उनकी बोट जो थी इट rode over the wave, and the mast was almost horizontal. He himself was about to sink into the water, but anyhow he rescued, and when he found himself alive, he struggled back to fight this storm, to fight this adverse circumstances. He made all his efforts to save his family and himself from this injury. Now he is describing the further incident, that on the January 3, what happened. By the morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. As throughout the night of the 2nd January, they were continuously pumping out the water out of the ship. So by the morning of January 3, they found that the situation of the water on the ship was not so threatening. Now water level has grown down, and now they can take rest in rotation one by one. Throughout the night, all the members of the family, means both the crewmen, Mary was controlling the wheel, and the author himself, his son and daughter, anyhow whatever they can do, they all were busy in pumping out the water, in throwing the water out of the ship. But जनवरी जो 3 था तब तक वाटर लेवल इतना कम हो गया था शिप का, जो पानी भरा हुआ था उन्होंने इतना निकाल दिया था कि अब वो ज़्यादा चिंताजनक नहीं था, और वो एक एक करके रोटेशन में लगभग
थोड़ी थोड़ी देर का आराम कर सकते थे, 2-2 घंटे का आराम वो लोग कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके शिप में वाटर लाइन यानी बोट के नीचे कहीं एक लीकेज था, जहां से पानी अभी भी अंदर आ रहा था। ऑन चेकिंग, और जब कैप्टन ने उसे चेक करा तो उसने देखा, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम वर स्मैश डाउन टू द नील। तो उसने देखा जो बोट थी उसका रिफ फ्रेम मीन्स उसका जो मेन ढांचा है, नीचे का जो मेन ढांचा है, रिफ फ्रेम जो था, स्मैश डाउन, वो पूरी तरह से टूट चुका था, टूट के गिर चुका था टू द नील। नील मैंने आपको जब शिप का पिक्चर दिखाया था बताया था, दैट वाज एन ट्रायंगल इजेक्टेड पार्ट ऑफ द शिप विच वाज इजेक्टेड आउटसाइड। तो नील तक जो था उनके शिप का जो नीचे कहीं एक डैमेज हो चुका था, वो सब फ्रेम जो था नीचे से टूट चुका था, मीन्स शिप जो था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उनकी शिप में नीचे से भी पानी जो था लगातार लीक कर रहा था, अंदर आ रहा था। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस। और ऑथर कह रहा है सच बात तो ये थी, जो स्टारबोर्ड साइड थी, स्टारबोर्ड हल था, ठीक है, हल कहते हैं मजबूत जो लकड़ी का तख्ता था, जो शिप का स्टारबोर्ड यानी राइट साइड का जो डैमेज पार्ट था, उसको कोई ज्यादा मजबूत चीज जो थी वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि क्या था, फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन, कुछ लकड़ी के टुकड़े थे जिनके सहारे वो टूटा हुआ स्टारबोर्ड साइड जो था वो रुका हुआ था या टिका हुआ था। अदरवाइज द शिप starboard sails was completely damaged. We had survived for 15 hours since the wave hit. Now author is saying almost 15 hours have spent during the struggle against this stormy weather of the ocean. इस साउथर्न इंडियन ओशन के इस रफेस्ट वेदर को फेस करते हुए उनको लगभग 15 घंटे बीत चुके थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, एंड देयर aim is to reach Australia. But the condition of their ship, Wave Walker, is not strong enough. It is not appropriate. The ship is not well maintained to reach to the Australia. वो इतना मजबूत अपनी रह चुकी थी। इट वॉज टोटली ब्रोकन फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। तो उन्हें उम्मीद, ऑथर जो है कैप्टन को उम्मीद ही नहीं थी कि इसको ऑस्ट्रेलिया तक ले जा पाएगी। आई चेक्ड आर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड। तो ऑथर ने क्या करा, अपने चार्ट्स को चेक करा, मैप्स को चेक करा और अपने कैलकुलेशन लगाए, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और उसने अपने कैलकुलेशन के बेस पर ये पता लगाया कि जहाँ पर उनकी शिप अभी थी वहाँ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड मौजूद हैं ईस्ट में जाने पर। वन ऑफ दैम इले एम्स्टर्डम, उनमें से एक आइलैंड है, उसका नाम है इले एम्स्टर्डम। इंपॉर्टेंट टर्म है, लर्न करिए, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। विच आइलैंड द ऑथर वांट टू रीच, इट इज इले एम्स्टर्डम। तो उनमें से एक आइलैंड था इले एम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। और ये जो आइलैंड था एक्चुअली ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, मीन्स जो एक साइंटिफिक बेस का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। और अब ऑथर, कैप्टन, उसकी क्रूमैन, उसकी फैमिली की सिर्फ एक ही होप थी कि किसी तरह से इस वास्ट ओशन, इस बड़े से ओशन के इन पिन प्रिक्स, ये छोटे से जो पिन प्रिक्स हैं, सुई की माफिक 2 छोटे छोटे आइलैंड है इस बड़े से ओशन में, इन छोटे छोटे 2 आइलैंड को ढूंढकर, इस आइलैंड को ढूंढकर, इले एम्स्टर्डम को ढूंढकर उस पर पहुंचा जाए, सो दैट दे कैन सर्वाइव। बट unless the wind and seas abated, so we could hoist sail। लेकिन जब तक कि हवा ना रुक जाए, इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि अब वो जो था ना, कोई सेल, उन्होंने ऑलरेडी अपना जिप सेल जो था वो तो ड्रॉप कर दिया था, अब उनकी शिप जो थी बिना किसी सेल के राइड कर रही थी। तो जब तक कि वो अपना कोई सेल ना चढ़ा दें शिप के ऊपर, तब तक वो आगे की जर्नी तय नहीं कर सकते। और जब तक कि हवाएं नहीं रुकेंगी, इतनी तेज तूफानी हवाएं, वो अपने शिप के ऊपर कोई भी सेल नहीं बांध सकते। Our chances would be slim indeed।
इसलिए उनके सर्वाइवल के, उनके एस्केप के चांसेस बहुत कम थे। स्लिम का मतलब कम थे उनके चांसेस। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और वो जो बड़ी सी लहर ने उनके शिप के ऊपर एक्सप्लोजन किया था, जो अटैक किया था, उसकी वजह से उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था, मीन्स एक जो ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, मीन्स एक हेल्पिंग इंजन, वो भी पूरी तरह से आउट ऑफ एक्शन हो गया था। मीन्स शिप में उनके 2 इंजन थे, क्योंकि वो बता रहा है ना, द बोट वॉज प्रोफेशनली बुल्ड, उसको बहुत प्रोफेशनली बनाया गया था। मीन्स अगर किसी वजह से उसका एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे इंजन के थ्रू वो अपने शिप को ड्राइव कर सकें। बट द अटैक ऑफ द वेव was so strong that their auxiliary engine also got out of order, वो भी खराब हो गया था। मीन्स लगातार ऑथर इज टेलिंग अस कि किस तरह उसकी शिप ने और उन्होंने हार्डशिप का फेस किया। नाउ ही इज टेलिंग अस अबाउट द इंसिडेंट ऑफ जनवरी 4। ठीक है, जनवरी 4 को क्या हुआ वो बता रहा है। इससे पहले का जनवरी 3 का याद करिएगा क्या रहा था सारा सीन। ठीक है, किस तरह उन्होंने सोचा कि उसने अपने मैप्स वगैरह में कैलकुलेट करा कि उसको पहले एम्स्टर्डम जाना है, और उसके बाद वो जितना भी इंसिडेंट हुआ किस तरह उन्होंने एक एक करके रेस्ट लिया। जनवरी 4 को क्या होता है पढ़ते हैं। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नाउ जनवरी 4 को लगातार 36 आवर वाटर को पंप आउट करने के बाद वी आर एबल टू रीच एट द लेवल वेयर the water was only few centimeters in the height on the ship। शिप में जो वाटर भरा हुआ था वो केवल कुछ सेंटीमीटर ही था, वो इतना नहीं था कि जो डेंजरस हो या हार्मफुल हो। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। नाउ अब ऑथर इस कंडीशन में था, कैप्टन इस कंडीशन में है, उसकी टीम इस कंडीशन में कि उनको केवल क्या करना है, कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। केवल जो पानी लगातार अभी छोटा कहीं लीकेज से लगातार शिप में जो आ रहा है, बस उसको लगातार उन्हें बाहर निकालना है। जो पहले से भर गया था वो उन्होंने निकाल दिया। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। वो अपने मेन मास्ट यानी जो उनका मेन पोल था, बड़ा पोल जो शिप में लगा था, उसके ऊपर अभी तक कोई भी सेल, कोई भी पाल नहीं बांध पाए थे, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही थी। प्रेशर ऑन द रैगिंग would simply pull the damaged section of the hull apart। और जो प्रेशर ऑफ द रिंगिंग का मतलब है रस्सियाँ, जो रस्सियाँ उनकी शिप पर उन्होंने बांधी थी ना उसको बचाने के लिए, उनका प्रेशर इतना तेज था, पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, कि उन्हें डर था, कैप्टन और उसकी टीम को डर था कि कहीं वो हल कहते हैं उसका जो राइट स्टारबोर्ड साइड का जो टूटा हुआ पोर्शन था, वो उसको कहीं तोड़कर अलग ही ना फेंक दे, वो इतना तेज था प्रेशर। सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर। तो इसलिए ऑथर ने क्या करा, हॉइस्ट कर दिया यानी चढ़ा दिया। क्या चढ़ा, स्टॉर्म जिप। स्टॉर्म जिप मीन्स छोटा वाला जो पाल था तिकोना, उसको चढ़ाया और अपनी जर्नी उस डायरेक्शन में शुरू करी जहां उसको एक आइडिया था कि ये दोनों आइलैंड मिल जाएंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स, बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। एंड आफ्टर दिस जो मैरी उसकी वाइफ है, उसको कहीं से शिप में थोड़ा सा कॉर्न बीफ कहते हैं काउ मीट को, ठीक है, उसको कहीं से थोड़ा सा कॉर्न बीफ मिला, कुछ बिस्किट क्रैकर्स मिले, और ये उनका 2 दिन में खाने वाला, उनका मिलने वाला पहला मील था, यानी पहला भोजन था। 2 दिन से लगातार ऑथर और उसकी फैमिली ने कुछ नहीं खाया था। दे वर जस्ट बिजी इन throwing the water out of the ship, they were busy in escaping themselves, and this is the first meal which they took in these 2 struggling days। But our respite was short-lived। respite कहते हैं एक तरह से उनका जो आराम था, ये जो उनकी चिंता कम हुई, मीन्स अब उनके शिप पे पानी भी कम रह गया था, उनको सिर्फ पानी को बाहर निकालना था जो आ रहा था, उन्होंने सेल भी चढ़ा लिया था, कुछ खाने को भी मिल गया, मीन्स जो इतना टेंशन वाला था उनका माहौल वो थोड़ा हल्का हुआ। लेकिन ये जो रेस्पाइट था उनका, ये जो उनका लेजर था, ये जो उनका रिलीफ था, इट वॉज वेरी शॉर्ट। फिर से कुछ हो गया, देखिए क्या हुआ। एट 4 PM शाम को 4 बजे
किस डेट को, डेट वही चल रही है 4 जनवरी, ठीक है। 4 जनवरी at the 4 p.m. black cloud began to building up behind us. फिर से उनके चारों तरफ काले काले बादल घिर गए. They were covered by the black cloud, black stormy cloud. Within the hour, the wind was back to 40 knots, or just within the hour, the speed of the wind was also increased. It was blowing at the speed of 40 knots per hour. 40 नॉट्स मैंने आपको बताया था ना, मीन्स विंड और शिप में चलने का मेजरमेंट होता है. एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और फिर से जो सी था वो हायर हो रहा था, मीन्स उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी. द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट. पूरी रात 4 जनवरी 4 जनवरी पूरी रात जो था उनका जो वेदर था ओशन का वो खराब होता ही गया. एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी के डॉन को क्या होता है, आर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. उनकी सिचुएशन फिर से डेस्परेट थी, यानी चिंताजनक थी, निराशाजनक थी. दे वर होपलेस अगेन ऑन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5. एट द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 4 there was a small relief for them, but by the morning of January 5, again their situation was disappointing. When I went into the cabin, comfort of children, comfort means उनके रूम में, फिर से कैप्टन अपने बच्चों के रूम में गया. जॉन आस्क्ड, जॉन उसके बेटे ने उससे पूछा जो 6 ईयर का था, डैडी आर वी गोइंग टू डाई. उसने पूछा अपने फादर से, क्या हम मरने जा रहे हैं. I tried to assure him that we could make it. लेकिन कैप्टन ने अपने बेटे को तसल्ली दिलाई, उसको अश्योर करा that they can make it, they can fight against this situation, they can overcome this situation. उसने अपने बेटे को हिम्मत दी. But daddy, he went on. लेकिन उसके बेटे ने फिर से उसको बोला, we are not afraid of dying if we can all be together. उसने बोला, डैडी, we are not afraid to die if we all are together, if we all are making our efforts well, if we are trying our level best, we are putting our best effort in saving our lives, then even if we die, I don't worry of such kind of brave death. देखिए यहाँ से इस चैप्टर का टाइटल आया है, ठीक है. ये जो टाइटल है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, ये कहाँ से आया. दिस वॉज द स्टेटमेंट, और वी कैन से दिस इज द स्टेटमेंट मेड बाय द सन ऑफ कैप्टन when he asked his father what was their condition. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. you and मम्मी, you and I, उसने अपने 4 फैमिली मेम्बर्स के नाम बता दिए कि जब तक हम लोग साथ साथ हैं मुझे मरने से भी डर नहीं लगता. if we all are putting our best efforts, if we are fighting like the warriors, then I'm not afraid to die even of my death. I could find no words with which to respond. Arthur was overwhelmed at this statement of his son. He could not find words to react. But I left the children's cabin, determined to fight the sea with everything I had. But this statement of his son, it filled him with a zeal, with a courage, with a new spirit to fight. And now he is more determined, and he decided to fight this situation with all those things which he have, whether they are broken, whether they are not perfect, whether they are professional or they are unprofessional, whatever equipments he has, he will fight with those equipments, and he will definitely save his life. He was filled with this kind of spirit at the statement of his son. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो उसके शिप का जो स्टारबोर्ड साइड था, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या करा. आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स. ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड करा, उसने ये सोचा कि अब वो अपनी शिप को टर्न कर देगा, और विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, जो उसका शिप का अनडैमेज पोर्ट है, जो उसकी शिप का वो पोर्ट है, वो साइड है जो डैमेज नहीं हुआ है. कौन सा, हल, मीन्स जो उसका शिप का लेफ्ट साइड है जो डैमेज नहीं हुआ है, वो उसको क्या कर देगा, फेस कर देगा ऑन कमिंग वेव्स.
उन वेव्स की तरफ जो शिप से आकर टकरा रही है. सो ही डिसाइडेड टू रोटेट हिज शिप so that he can encounter the stormy waves with the undamaged part of his ship, and that is the left side of his boat, because the right side, that is the starboard side, it was already damaged. And what he did, using an improvised sea anchor, और ऐसा करने के लिए उसको एंकर चाहिए था ताकि वो अपने शिप को थोड़ी देर रोक के और फिर उसको दूसरी साइड टर्न करे, और उसका एंकर जो था वो पहले से ही डूब चुका था, टूट चुका था, पानी में बह गया था. तो उसने क्या करा, एक इम्प्रोविस्ड सी एंकर, एक इम्प्रोविस्ड मीन्स जो बहुत इम्प्रूव्ड नहीं था, बहुत रफ टाइप का, उसने एक एंकर अपने आप से शिप पर बनाया. किस चीज़ का यूज़ करके, नायलॉन रोप. उसने नायलॉन की स्ट्रॉन्ग रस्सी ली एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. पैराफिन इज अ काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है, लाइक कैरोसिन, लेकिन कैरोसिन तो नहीं होता है, उसी टाइप का एक ऑयल होता है. तो उसके शिप पर पैराफिन ऑयल के 22 लीटर्स के बैरल्स थे. बैरल्स मीन्स एक तरह से ट्रंक थे, ठीक है. तो उसने उन बैरल्स का यूज़ करके नायलॉन की रोप के साथ अटैच करके अपने शिप के लिए एक एंकर बनाया. दैट वॉज नॉट सो इम्प्रूव्ड बट इट वॉज डूइंग द वर्क. It was helpful for them at that situation. So, in this way, the author tried to escape his family. He made all these efforts to save his family. Okay, children, यहाँ तक पढ़ के रखिएगा. आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे. जब तक पूरी स्टोरी सिंस द बिगिनिंग टिल हियर उसको कम से कम 2 बार पढ़िए, बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी उनकी शिप दोबारा से स्टॉर्म में फंस रही है, क्या क्या डैमेज हो रहे हैं. इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर बट यू हैव टू रिमेंबर दैम बिकॉज इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो गो थ्रू द चैप्टर once or twice so that you can learn them perfectly. Okay, bye and have a nice day.